Nagira? Nagira? जी सर। हाँ जी, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है? उमर उमर भट्टी आप करवा दें। उमर भट्टी इज द रूह रवां ऑफ दिस वर्कशॉप. Umar Bhatti Saab, he was a graduate of UET. Then did his PhD in electrical engineering from Imperial College London, and is teaching and working as a research scientist in Islamabad. Umar Bhatti Saab, आप अपना माइक ऑन करके फिर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें. जी सर, आपने इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया है वैसे. बेसिकली तो मैं आपके साथ यानी कि जो भी आप सर के साथ ही मैं अटैच हूँ 1 साल से तकरीबन. तो मैं फॉर्मर स्टूडेंट हूँ सर का 89 बैच का. इट्स वेरी वंडरफुल कि 1 साल से मैं ये बहुत सी लर्निंग हुई है मेरी बहुत ज़्यादा. वैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इसी में मैथमेटिक्स के आप कह सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में है. मेनली कंट्रोल सिस्टम्स, नेविगेशन इसमें है मेरे प्रोजेक्ट्स जनरली. और 8-10 साल मैंने टीचिंग की है इसमें ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, नेविगेशंस में और इसमें कंट्रोल सिस्टम्स में, इस एरिया में. कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स भी 1-2 हैं. Mustafa, can you hear me? You have to open your mic. Mustafa? नो सर, मुस्तफ़ा साथ नहीं है हमारे. सोहेब साहब और तार साहब हैं. अब आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज. मेरा नाम ताहिर रमज़ान है और मैं सर का 5 साल से स्टूडेंट हूँ. जियोजेब्रा पे काम कर रहे हैं कि जियोजेब्रा को कैसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए. सर वैसे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी जी. Why haven't you tried to reach out the people to the people who actually made this wonderful app GeoGebra? We are in constant contact with these people. Well, there goes my argument. Anyone who is using GeoGebra, the notification, whenever you register for GeoGebra, the notification goes directly to the authors of GeoGebra and they start. आप जितना चाहें उनके साथ. GeoGebra is in the public domain and different people are contributing in making different applications free of cost, absolutely free of cost, just for the passion of understanding and appreciating mathematics. मेरे ख्याल में सरमत ने मैथ कैड में या मैथमेटिका में काम किया होगा. Yeah, Ashraf, I use Python and OpenGL. Python user. GeoGebra is much more easier or user-friendly to use. Sir, you know what? I'm going to create my own version of GeoGebra. Almost the same power and friendly interface. As you can see, Nadir is in the 5th class or 6th class, perhaps? 4th class. And using GeoGebra. इससे पहले we have people in the 3rd class using GeoGebra, enjoying GeoGebra. So the more important thing is that it attracts the attention of anyone who is excited by patterns, who is excited by waveforms, who is excited by graphs, who is excited by pictures, who is excited by movement. And that is what mathematics is really, calculus is really about. Study of motion and study of shapes and how different shapes interact with each other and how they move
in time and space. That is basically the essence. Well, it's very difficult to define calculus, but this may be perhaps one of the many definitions of calculus. My definition of calculus is something Huh? that describes the universe with many other shapes, sizes, and basically the things that we see and use every single day. Calculus is basically tying those together to the meaning and creation of our universe. Well, nicely worded. Thank you. The secretary of the workshop is Sohaib Sebi. Please introduce yourself. Mic on कर लें. जी अस्सलाम वालेकुम जी अशरफ साहब और एवरीवन समद साहब आज न्यू फेस है हमारी उसके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मैं थोड़ा सा अपना मैं असल में बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग की थी यूईटी से और उसके बाद 8 to 9 इयर्स मैंने प्रैक्टिस की है सुई गैस फील्ड जहाँ पे ये बलूचिस्तान में फील्ड है ना वहाँ पे मैंने इसको मतलब इसी को परस्यू किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए यूके गया था लंदन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया था छुट्टियों पे। तो बस उस दौरान ये अशरफ साहब से मुलाकात हुई तो इनका जो कह लें कि एजुकेशन के लिए जो जिस एरिया में इनका फोकस था ना जो रिसर्च एरिया का फोकस था वो बिल्कुल कह लें कि मेरा एक साइड में एक वो था कह लें पैशन कह लें या जो भी कह लें कि देयर नीड्स टू बी अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। तो बस उसमें ही 1 साल से मैं अशरफ साहब के साथ जो है ना और उमर भट्टी साहब हमारे साथ मिलके ताहिर साहब हो गए हमारी ये छोटी सी टीम है। तो वी आर ट्राइंग टू इसी को जैसे कैलकुलस को किस तरह इसको इंटरेक्टिव बनाएं इंगेजिंग बनाएं मतलब नादिर को उससे रिलेट कर सके। नादिर जो है ना कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को उसको इस तरीके से हम बताएं कि न्यू फेस कोई भी उसको पहली बार सुने तो वो उसको जो है ना उसको समझ में आ जाए चीज़ जो कि मेरा ख्याल है नीड ऑफ द आवर चीज़ है यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कॉन्ट्रीब्यूशन है अशरफ साहब की और जो टीम में सारे लोग हैं नुफाल हैं बिस्नयरा हैं काफ़ी सारे लोग हमारे जो हेल्प करते हैं। बस ये मेरा है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अच्छा मैं नौफिल से कहूँगा कि वो नौफिल इज़ वन ऑफ अवर यंग ग्रेजुएट्स यंग बीएससी अंडर ग्रेजुएट्स अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन। मेरे ख्याल में ही इज़ द वन हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी तो सब लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं सिवाय अबे राना के हु इज़ फ्रॉम इंडिया। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन नौफिल from Pakistan, competition in a very positive sense. We are like brothers and we share our grievances, we share our sorrows, we share our happiness, we share our sentiments. So Naufil, please mic on कर लें और अपना introduction करा दें। सर मेरा इंट्रोडक्शन तो सर आपने करवा दिया। जी मुझे क्लास में मैथ से प्रॉब्लम रहता था हमेशा से। तो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैथ्स तो मैं शुरू से ही सोचता था कि इसको जो है ना टीचर सही नहीं पढ़ाते ना ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो मैं say something more Naufil. ITU he is doing his graduation in computer science from ITU one of the ITU से मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ सेमेस्टर 5th का स्टूडेंट हूँ मैं। and he says that he hates years of mathematics. That's right. सर आपकी आवाज़ मैं कह रहा हूँ कि तुम अक्सर कहते हो कि you hate teachers of mathematics. जी सर। हाँ तो उसके बारे में कुछ बताओ ना। बाकी सर कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस ही हैं तो आई हेट ऑल ऑफ देम।
नहीं तो फिर तुम कंप्यूटर साइंस के टीचर्स को हेट क्यों नहीं करते, मैथमेटिक्स के टीचर्स को क्यों हेट करते हो? हाँ तो सर वो Because मैथमेटिक्स नहीं आते ना वो सारी चीज़ें, मतलब वही जो मैथमेटिक्स की चीज़ें वही मुझे प्रॉब्लम कर रही है ना। क्या मतलब मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स नहीं आता? मैथमेटिक्स वाले नहीं ना हमें मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, यही तो प्रॉब्लम है। तो कौन पढ़ा रहा जो है? पढ़ाते हैं वो बिल्कुल बस रहने दे। वो मैथमेटिशियन नहीं है? नहीं नहीं, अब don't they have the degree in mathematics? वैसे जो जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स थे ना, डायरेक्टली जो मैथमेटिक्स के थे वो तो मैथ के एक ही टीचर ने सारे पढ़ाए, और उसका कंप्यूटर के साथ कनेक्शन नहीं बताया गया था कि मतलब हमने तो उसको यूज़ करना था ना। तो अब जब हम उसके एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स में जाएंगे, जैसे लीनियर अलजेब्रा से इमेज प्रोसेसिंग में जाएंगे, या मैथ से कैलकुलस से हम जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो फार्मूलाज की कोई समझ नहीं आती, वो सारा उधर पीछे ज़ाया हो जाता है और आगे जाके हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, यानी कि मैथ्स पढ़ाने वाले और मैथ्स की एप्लीकेशंस पढ़ाने वाले, ये दोनों आपस में मिले जुले हुए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हमारे पास कौन से इतने फैंटास्टिक टीचर्स हैं जिनसे तुम्हें मोहब्बत हो गई है? हाँ सर ऐसे ही है। हाँ? sir, frankly, computer science is not mathematics. अच्छा, Computer science is basically कंप्यूटर साइंस मेरे हिसाब से तो सिर्फ रोबोटिक्स होनी चाहिए ना, और वो तो हो नहीं रही ना, मतलब वो कुछ और पता नहीं क्या करते रहते हैं। Sarmad would like to comment on it that computer science is not mathematics. Well, I mean, theoretical computer science is a branch of mathematics. But there are other aspects to computer science also. Yeah, but mathematics is really the essence. Yes, you know, mathematics sits at the head of all knowledge. So I think any science, be it physics or chemistry or biology, you know, when you want to say precise things, then you have to say them in the language of mathematics. Mathematics is just a language to It's just a language. say things absolutely precisely. Yeah, You know. but there is a slight controversy. Okay, is it just a language or is it a discipline by itself? it is a language. It is the language of our universe, the language of God, the language that He created. I mean, all if you look at the languages, कोई भी आप language ले ले, English, Urdu, जो भी, they're all created by, मतलब humans. It's not there's only so much things you can say to. Urdu was created by humans, huh? And Okay, English में one of you try to explain me the universe in English. So you think the God created the language of mathematics, huh? Yes, मतलब. Well, that is a statement which may be debatable. मगर सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि is mathematics a discipline by itself or It not? is not a discipline. A discipline is not something fun. Oh my God. Sarmad, you think it is not a discipline? Look, mathematics is, strictly speaking, it's a language, but what you study with it are abstract structures, and there are many, many, many interesting things. So those structures can come from real life in an attempt to try to understand the world around us. And so, for example, physics is a big example, right? You know, all the laws of physics are written in terms of equations, differential equations, and things like that. But pure mathematicians do create structures which have nothing to do with this universe.
and they just study them because they are beautiful or they find them interesting. So Then it you becomes know, a discipline. then I think it becomes an art form. You know, it's an art. And art form is a discipline. Well, you know, if don't really understand what a discipline is. Physics is a discipline. By discipline, if you mean that there is a large community that is interested in studying such things, yeah, in that sense it is. You know, there's a huge community of people who call themselves mathematicians. But yeah. not are actually mathematicians. They are not mathematicians. What did you say, Nadir? Sounds more than half of, I think 99.9% of all people that say that they understand mathematics do not understand mathematics. Okay, Nadir, let me give you a quote of one of the brightest guys who ever lived. His name is John von Neumann. And he once said that we don't understand mathematics. We just get used to it. Okay, so perhaps, so according to him, disclosing this, but nobody understands it. I think Nadir is talking about those people who say that they understand mathematics, but actually they do not understand mathematics. It is a dilemma that those who understand mathematics, they say that we do not understand mathematics. अच्छा ये सर जो आपने कोट लिखा है बोर्ड पे इसका क्या मतलब है? Like the crest. इसका क्या मतलब है? अशरफ साहब बताएंगे. Like the crest of a peacock, like the gem on the head of a snake, so is mathematics at the head of all knowledge. How can I explain this? This is the first time that I've disclosed this to anyone. But I've made a discovery that it's basically that we've been doing mathematics wrong for centuries. Calculus, ये सारी चीजें, these are correct, but basic arithmetic we're doing wrong. I figured out, using calculus and Papa's help. So we found out that 2 plus 2 or 1 plus 1, 1 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 5. And just by me saying that breaks apart the universe itself. We've been doing mathematics wrong because if the equation 2 plus 2 is equal to 5 is correct, then sorry to say, but all of the equations that we've done is wrong. All of the code mathematics, the pure mathematics is right, but the things that are guarding it, those are wrong. If 2 plus 2 or anything like this is correct, then multiplication is wrong. And if multiplication is wrong, then division is wrong. And then if addition is wrong, then subtraction is wrong. And डॉक्टर मुख्तारुल्लाह सर आज जी बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम. जी ये डिसिप्लिन वाली बात पे मुझे असल में एक हिस्टोरिकल चीज़ याद आ गई, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, लेकिन ये फ्रांस में डिबेट हुआ था कोई 200 इयर्स बैक इन हिस्ट्री. इंट्रोड्यूस करवा दें अपना नाम. जी मैं डॉक्टर मुख्तार बात कर रहा हूँ. एक दफ़ा मैं पहले भी इसमें आया था, लेकिन उसके बाद मुझे अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला फॉलोअप का. इंट्रोडक्शन करा दें. जी मैं माय नेम इज़ डॉक्टर मुख्तार उल्ला. आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग at FAST National University of Computer and Emerging Sciences. I have a PhD in computational biology from Germany and a master's in control systems from Manchester.
And before that, I worked with Dr. Umar Iqbal Bhatti Saab in NESCOM. And before that, I graduated from UAT Peshawar. So I also have a passion for mathematics, but somehow I'm unable to catch up with these workshops. So today I somehow managed to join you guys. जी जी, और कुछ अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दीजिए। इंटरेस्ट तो मेरा ये है कि बस मैं मैथमेटिक्स के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मगजमारी करता रहता हूँ, बिकॉज आई डोंट एग्री विद द वे दे आर टीचिंग मैथ टू आवर इंजीनियर्स एंड they actually they create more problems. तो मैं तो उनको एक दो दफ़ा मजाक में ये भी कह दिया था, अगर आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आप पढ़ाते हैं तो वो हमें अनडू करना पड़ता है पहले। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मैं खैर पाकिस्तान के बारे में कह सकूँगा, बाकी दुनिया में तो मैथमेटिक्स आई डोंट नो कि किस तरह पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान का जो इशू है, यहाँ पे लोग जो है ना, जो उन्होंने अपने बैचलर्स और एमएस में पढ़ा होता है ना, दिस इज नाउ माई एक्सपीरियंस सो फार विद मैथमेटिशियंस, वो उन्हीं नोट्स को यूज करेंगे। सो दे वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग। सो एवरी डिसिप्लिन, लाइक अभी थोड़ी देर पहले ITU में कंप्यूटर साइंस की बात हो रही थी। कंप्यूटर साइंस में अगर मैथमेटिशियन ने पढ़ाना है वो डिफरेंट पढ़ाएगा, इंजीनियरिंग में उसने पढ़ाना है डिफरेंट पढ़ाएगा, उसने फिजिसिस्ट को पढ़ाना है डिफरेंट पढ़ाएगा। नाउ दिस एक्चुअली एडजस्टमेंट्स टुवर्ड्स ईच डिसिप्लिन, इट इज समहाउ दे आर नॉट डूइंग दैट। बस वो एक ही जो है ना चीज़ उनको आती है और वो हर दफ़ा उन्होंने वही बतानी होती है। ये बात तो आप और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के बारे में, सोशल साइंटिस्ट्स के बारे में भी कह सकते हैं कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वही वो पढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन सर वो स्टेक होल्डर्स नहीं है ना, उनका वो मैथमेटिक्स हर जगह घुसी हुई है ना। अब जो मतलब कंप्यूटर साइंस वाला तो आके इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाएगा ना, इंजीनियरिंग में हम वो सब्जेक्ट खुद पढ़ा लेते हैं। मैथ को मसला ये है कि मैथ HEC हमें कहती है कि ये मैथ वाले पढ़ाए, इवन PEC वाले भी आके कह देते हैं। तो मैथ वालों के साथ हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, वो उनके साथ वी हैव टू एंगेज। सो कुछ विजडम भी है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये कहना कि हम सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैथ के सब्जेक्ट्स भी वही पढ़ाएंगे, मेरे ख्याल में इसके अपने कुछ नुकसानात भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। मेरा सर नुक्ता ये था कि अगर इस्लामियात वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को और कंप्यूटर साइंस को एक तरह का इस्लामियात पढ़ाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन वो मैथ दोनों को सेम पढ़ाए इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्लामियात की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस्लामिक स्टडीज तो गालिबन शायद पढ़ा सकता है, पता नहीं मुझे, लेकिन मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा, हम दोबारा भी करेंगे डिस्कस, कि उसमें कुछ मसाइल हैं जो बाकी और सब्जेक्ट्स में गालिबन नहीं है। सरमद, शायद तुमको ये बात मालूम होगी कि सरमद इज़ वन ऑफ द फ्यू mathematicians, computer scientists, theoretical computer scientists, which is mathematics, who did his PhD from United States. Now, I have teaching experience of about 45 years. Most of my students are computer scientists or electrical engineers. None of them are from mathematics, but I can count on my fingers. I can tell you dozens of PhDs in electrical engineering or computer science who did their PhDs from Stanford, MIT, Caltech, or any top university of the world. But if you look at the mathematics profile of our teachers, then I have only met with one person who did PhD in mathematics, real mathematics, from United States. So, Sarmad, can you say something about it? What is so special in doing a PhD in mathematics from United States that you don't find any Pakistani? I have a professor in LUMS visiting from Malaysia, and he said कि जो मलाई
मुस्लिम्स हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका से किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी की हो. As far as the ones Chinese and the Indians are concerned in Malaysia, there are so many of them. So what is so special in mathematics कि अमेरिका से मैथमेटिक्स में पीएचडी करना is something, मतलब ये कि I have seen people वो मैथमेटिक्स में पीएचडी करने के लिए गए लेकिन फिर वो स्टैटिस्टिक्स में चले गए. अब वो मैथमेटिक्स में पीएचडी करने के लिए गए और वो फिर एग्रोमेटिक्स या इकोनॉमिक्स के किसी फील्ड में चले गए, मगर मैथमेटिक्स में उन्होंने पीएचडी नहीं की. यस सरमद. Yeah, so one of the things is that can you guys hear me? Yes. Okay. So one of the things is that the mathematicians are actually very, very their criteria that they set are very, very high. So to give you example, Feynman, who was one of the brightest physicists, he was a Nobel laureate. He describes that he used to sit in the maths department coffee room, and some guy will come and write something on the board, and people will start working on this problem, and another guy will come, another guy will come, another guy will come, and 8 or 9 people will stare at the board, try to do things, and 4 or 5 hours will pass by, and then one of them will scream and say, "Oh, it's trivial," okay? And then he'll write something very quickly, all right? And all of them will say, "Oh, yeah, it's trivial," and they'll all go away, okay? And Feynman said that I used to wonder, if it were trivial, why did it take the best mathematicians 6 hours to figure it out, okay? So one is that their criteria are really, really tough, the contributions that you make are, go through a huge scrutiny. So mathematics is a difficult subject. Rutgers University, when I was there, it was like a jail. It was easy to get in, but very hard to get out. Okay, I mean, I know people who spent 12 years there, right? So these are very kind and gentle people, but their criteria are very, very, very high. वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मतलब ये कि ऐसा क्यों है? हिस्टोरिकली क्या वजह है इसकी? Historically, I think इसकी वजह ये है कि probably mathematics has attracted the best minds in the world. This could be said about Germany also. This could be said about other European countries also. But you can find people did their PhD in mathematics from England. So many of them. Yeah, well, the British system is something which is very timed, right? You go there, you spend a certain amount of time, and they hand you a degree. So hard sciences in America are very difficult. Pure physics, theoretical physics is very difficult. The only people I know is a recent guy, Amir Iqbal, who did that, from a good place. So, in some sense, mathematicians they're not very forgiving people, I remember that there was a breakthrough, and I was talking to my advisor about it, and my advisor said, "Oh, it is a very nice observation," and I thought that that calling a breakthrough an observation, was very harsh of him. On the other hand, if he were with a group of people, he would praise something very generously, right? There is a noise here. Okay, sir, आप continue करें. वो mic mute कर दिया. ठीक करें सरमद. Please continue. अच्छा. Okay, you guys can still hear me, right? जी.
you know, एक तो ये है और दूसरा ये है कि हमारी जो कल्चर है ना उसमें, सो फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा होता था तो मुझे किसी ने बताया कि पीएचडी जो है सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो जब मैं लोगों को कहता था कि मैं पीएचडी करूंगा तो दे यूज्ड टू से ओ फिरा हुआ दिमाग बनोगे, you know, that's the culture, right? And you know, if you talk about philosophy, right, people think that, you know, you're this crazy guy who loses everything, who doesn't you know, take a shower, you're a very strange person, right? तो ये एटीट्यूड पता नहीं क्यों हमारे कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता आ गया है। और एक बार मैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि मैथमेटिक्स क्या है, तो उन्होंने कहा ये जिनों की जबान है, राइट? सो पीपल हु अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स आर in some sense weirdos, you know, they're not normal, right? Now if this is the attitude we're going to have, तो you know, फिर हम लोग कैसे करेंगे मैथ्स, you know? तो इसलिए हमारे जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, और बहुत कम लोग जो हैं वो मैथ्स करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। या वो कर नहीं सकते तो इसलिए चले जाते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन आई थिंक कि रिसेंटली अगर आप देखें कि जो फील्ड्स मेडल मिले हैं तो, या नेवनलीना प्राइज जो कि कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें देयर आर सेवरल पीपल फ्रॉम इंडिया, राइट? तो बड़ी पुरानी ट्रेडिशंस है ना। हाँ, लेकिन इंडिया और हम जेनेटिकली तो एक ही है ना, मतलब हमें हाँ, तो अगर हम थोड़ा सा अपने कल्चर को चेंज करें तो हमारे पास भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए, एटलीस्ट पर कैपिटा तो उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। सो यू नो, आई थिंक दैट देयर हैज टू बी general effort towards saying that mathematics is beautiful, mathematics is fun, mathematics is it's a worthy pursuit, you know, just like you can appreciate a poem, right? You can appreciate a theorem, right? So that's what I think is missing. Anybody who wants to ask any question from Sarmad before we continue or move forward? You have an ideal opportunity. It's a once in a lifetime opportunity to talk to him and ask any question you want to. सर मुझे बताओ, जो ये आपने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में मतलब क्या क्या चीजें करती थी? Can you repeat your question? I wasn't able to hear. थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में कैसे कहाँ यूज होते हैं? Okay, so broadly speaking, theoretical computer science में what you do is you prove things, okay? So typically जो दो major subjects हैं इसमें वो हैं, एक तो algorithms है, analysis of algorithms, okay? और दूसरा जो है वो complexity theory है, right? So algorithms में आप जो है methods बनाते हैं to solve problems, but it's not enough to make a method and program it and say, you know, देखो ये काम कर रहा है ये वो, या stats निकाल के आप कहें कि इतना % इसका ये है। You actually prove things about them, कि what will be the resources required by the algorithm, and you know what is the quality of the algorithm. So you prove everything mathematically. In complexity theory, you try to identify difficult problems, all right, and say that these cannot be solved within these resources. One needs a lot of resources. So those are the two major things. But other than that, any structural theorem, any which can be proved mathematically, would be considered computer science.
Yes, सर मेरा इस पे एक क्वेश्चन है। आपने अभी बोला कि हम जो है ना थ्योरम्स को प्रूव वगैरह करते हैं और वो मैथमेटिक्स है। फ्रैंकली आई एक्चुअली हेट प्रूविंग थ्योरम्स। मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है, पर मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सोच रहे होते हैं ना मतलब किसी एल्गोरिदम को बनाने के लिए कि फ़र्ज़ करें मैं कुछ करना चाहता हूँ और फिर मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ, कुछ तुक्के लगाता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ और फिर कुछ कर देता हूँ, तो वो भी तो मैथमेटिकल थिंकिंग है ना हमारी। हम कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो प्रूफ है या नहीं है, और हम उससे अपना काम चला लेते हैं, ठीक है? तो वो भी तो एक तरह की मैथमेटिक्स है ना? No, no. So there's a huge difference. Look, so मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक होती है ह्यूरिस्टिक, राइट, जो कि अक्सर लोग ह्यूरिस्टिक बना के और अपना काम चलाते हैं। उसका काउंटर पार्ट थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में होता है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम में आप ये गारंटी दे सकते हैं कि इसका आंसर इतना अच्छा होगा, राइट, जबकि ह्यूरिस्टिक में कोई गारंटी नहीं होती, राइट। सो you know, that will, look, you can call anything you want anything, right, to make yourself feel better, right. So for example, I could be taking a program and just playing with it and saying, you know, I'm being creative, so it's a creative exercise. I can call it mathematics, I can call it computer science, I can call it whatever I want. But no, I disagree with you that just playing with things without understanding them is mathematics. See, proof is the only way that we can convince ourselves that we understand something. You know, that's the only thing I know, right? सर फर्ज करें कि आपके पास नंबर्स हैं, फिबोनाची नंबर्स हैं, और आपको पहले नहीं पता कि फिबोनाची, आप जो है ना अभी आप स्पीक कर रहे हैं, अच्छा, फिबोनाची नंबर्स को आप जो है ना log n में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? पहले आपको नहीं पता, ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर आप न्यूमेरिकली उसे कैलकुलेट करते जाते हो, मतलब पहले उनको सीधा लिखते हो कि जमा करके कैसे आता है, फिर उनका डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस लिखते जाते हो, उनमें डिफरेंस कितना आता जाता है और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो आखिर में जाके आपको पता चलता है कि जितना भी डिफरेंस निकालते जाओगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वो जा रही होती है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो आप एक वेल प्रूव्ड थ्योरम को जो है ना आप फिगर आउट कर लेते हो और आपको पहले पता भी नहीं होता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने मैथमेटिकल एक चीज़ की है और मुझे उसका बिल्कुल पता भी नहीं है और मैंने कोई मैथमेटिकल थिंकिंग नहीं की और मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तक पहुंच भी गया हूँ जो कि सही भी है? No. Look, if you have rediscovered a theorem, you have done mathematics. Okay, so if you have rediscovered a mathematical truth, right, then you have done mathematics, and it's something that you should celebrate. It's something you should feel proud of, right? In fact, एक mathematics पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप, और प्रोफेसर अशरफ यूजेस दिस अ लॉट, कि वो एक प्रॉब्लम आके बोर्ड पे लिखते हैं और कहते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक एन एल्गोरिथम, राइट, एंड देन ही टॉक्स विद स्टूडेंट्स and together they discover algorithm, right? So they are doing theoretical computer science, they are doing mathematics, right? हालांकि वो algorithm is known in the literature, अशरफ साहब को पता होता है कि भाई यही एल्गोरिदम निकलेगी, लेकिन वो उन्हीं स्टूडेंट से निकलवाते हैं. That is doing mathematics. I'm not saying that that's not mathematics, but what I'm saying is, if you can't prove things about a method, then that doesn't have any value in theoretical computer science, right? So you don't have to be the first one, right? In fact, you know, बहुत सारी चीजें लोगों ने इंडिपेंडेंटली भी जो है वो डिस्कवर की हैं और करते रहते हैं. क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स तो करते ही रहते हैं ना, बल्कि अक्सर तो हम उन्हें प्रॉब्लम ऐसे देते हैं जो हमें पता होता है
लेकिन हम उन्हें solution नहीं बताते, तो when they actually work it out, they are doing mathematics. Does that answer your question? पता नहीं. Okay. Okay, any other question before we move forward? हाँ ये जी हाँ यार समझ साहब से ये पूछा था कि आप मतलब आप अपने आप को अप्लाइड मैथमेटिशियन के उसमें लेके आएंगे या थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की साइड पे, मतलब कोई पूछे आपसे तो आपका क्या क्या जवाब होगा, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट. I'm not an applied mathematician at heart. अच्छा. Once in a while, I have looked at applied problems, and you know, if an application comes up and my expertise can help solve that problem, I'll go ahead and do that. But you know, at heart, what I would really love to do is to be a pure mathematician. From here you can see the sort of I should not say hatred, but dislike for applied mathematics. What is applied mathematics, and why you are sort of dislike it? So G.H. Hardy की एक बहुत खूबसूरत किताब है ना, मैथमेटिशियंस अपॉलॉजी, राइट? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि a science is called applied if it accentuates the existing inequalities in the distribution of wealth or more directly contributes towards making weapons of mass destruction. Okay, so in that sense, you know, I have an aversion towards any applied work, right? But for example, if mathematics can be applied to understanding the universe, I mean, I would be very excited. So, you know, if I don't want to do work in which, say, somebody like Elon Musk makes money or somebody rich makes money, all right, that sort of puts me off. All right. I think that is a more of a ideological. Yeah. Then सर ये एक बात आपको पता होगी, इलॉन मस्क को ही अभी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है नासा की तरफ से फॉर द नेक्स्ट जो भी उनके प्लान्स है ना, तो यानी कि वो आपकी बात ठीक है कि मे बी वो एक्सप्लॉइट कर रहा होगा एक सिंगल पर्सन, लेकिन उससे जो डिस्कवरीज वो कर रहा है जो दुनिया में वो लेके आ रहा है, दैट वो तो कंट्रीब्यूशन दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल वन. ही इज अप्लाइंग दोज थिंग्स. I absolutely disagree. So, for example, Stephen Jobs, जिसके पास 50,000 जो थे वो पैटेंट्स थे, वो 50,000 पैटेंट्स जो हैं उन लोगों के थे जिनकी लाइफ उसने बर्बाद की, जिन्होंने रात रात बैठ के 26 घंटे 24 घंटे काम किया, and who, you know, whose work was actually stolen. I think there can be better models doing that. You know, yes, if you spend billions and trillions of dollars, good things are going to come out of it. But, you know, what's the difference between that and a war in which millions of people die and one general becomes a hero? You know, to me, it's no different. So, but you know, we're getting very political here. So let's. Okay. Let me. मैं डरते I come to. Oh, yeah. Let me allow my cat to go out. Okay. Sarmad, we were talking about last time, and I will. Naira हमारे साथ हैं? नो सर, अभी वो ऑफलाइन हो गई हैं. जी सर, नो सर, आई एम हियर. अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सरमद को भी मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा डरते, इसलिए कि दिस इज डोमेन. I'll share my screen. Nadir is here, and his prior knowledge
he does not have a knowledge of differential equations or differentiation, but he knows arithmetic. So if we, you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. You can see my screen. मुझे ये इसका border नजर नहीं आ रहा किसी वजह से, I don't know why. मगर you can see my GeoGebra screen. Yes. हाँ? Yes, you can. All right. तो मैं नजीरा आपको भी बताने की कोशिश करूँगा और please try to correct me जी and सर. forgive me for my informal and non-mathematical way of putting that problem or explaining that problem or illustrating that problem. We are talking about a heat equation, one-dimensional heat equation, and we are trying to make it so simple so that Nadir, who is in the 4th class or 5th class, can also understand it. अच्छा सरमत, हमें जो प्रॉब्लम पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्रॉब्लम हमें इसको समझने में हीट इक्वेशन की डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम बाद में बात करेंगे, मैं अभी हीट इक्वेशन के डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब बात की जाती है तो हम मैथमेटिक्स में, यू विल एग्री विद मी, कि वी विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, जबकि जो रियल फन है वो फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जिस पे हम डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ होंगे कि वो हम उस पे बहुत कम जोर देते हैं, उसको हम बहुत डी एम्फेसाइज करते हैं, बल्कि अक्सर हमारे मैथ के टीचर्स जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो क्लास है, मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, उसमें वी डू नॉट formulate or we do not model physical phenomena or any phenomena by differential equations. So here we are talking about heat equation, and we are again forgive me for my informal ways, we are assuming that we have a metal rod, red color metal rod. This red color metal rod of infinite length but infinitely small diameter, and we are assuming that at time t equal to 0, Najira, you can hear me? जी सर, I can hear you. At time t equal to 0, the temperature profile, the boundary conditions are given. Okay. बाउंड्री कंडीशंस आर के ये तो आपकी रॉड है, ये तो फिजिकल डिस्टेंस है रॉड का. रॉड इज इनफाइनाइटली लार्ज बट वी आर कंसिडरिंग 3 points, just 3 points on that rod. और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिट डिस्टेंसेस पे हैं या डेल्टा एक्स के ऊपर हैं, and we are not really defining that how much that unit distance is. We assume that it is very small. We just say that we do not elaborate further. So we have a temperature of the rod at this point is 0. The temperature, ये initial conditions हैं at time t equal to 0. So these are the boundary conditions at initial conditions and boundary conditions combined together. Initial conditions का मतलब time t 0 पे, और boundary conditions का मतलब ये कि physically इस distance के ऊपर temperature 0 है, इस distance के ऊपर temperature 5 है, और इस distance के ऊपर temperature 10 है. और हम अब ये बात कर रहे हैं कि what the problem is. What is the problem? Najira? जी जी सर. The problem is कि हमें temperature profile तो given है, which is a straight line. हम ये assume कर रहे हैं कि it is a straight line. We can assume it as a sine function also. We can assume it in some other waveform also. For the time being,
to make things simple, we are assuming that it is a straight line, and the problem is कि at time t0 हमें ये temperatures तीनों पता है. ये तीन temperatures different distances पे हैं और 0 time पे. All right. Okay. The problem is, what is the temperature after a very small time, delta t, or a unit time? Again, I am not defining it because of reasons which I do not want to mention for the time being, to make things simple. A small unit time, a very small unit time, we just say कि हम एक छोटे से टाइम के बाद क्या होगा वो निकालना चाहते हैं, और वो हम सिर्फ T2 में निकालना चाहते हैं. तो कैलकुलस का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये कि अगर हमें इनिशियल कंडीशंस पता हों उसी टाइम में और स्पेस में, तो उसके थोड़े से वक्फे के बाद टाइम में या स्पेस में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा. यहाँ से हमारा मॉडल बन जाता है. तो वो मॉडल, उसको हम हीट इक्वेशन कहते हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. तो मैं इसको लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था. नजीरा, आप सुन रही हैं? जी सर, मैंने वैसे आपकी वीडियो देख ली थी और उसमें जो एक ही चीज मुझे बग करी थी वो इस दफा वो ठीक हो गई हुई है. अच्छा, ये तो फिर अच्छा नहीं हुआ कि वो ठीक हो गई है, इसलिए कि अगर कोई चीज़ ठीक हो जाए तो फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाती है ना. मतलब इस दफा वाली में वो एक डिफरेंस आ गया उसके अंदर जो मुझे. अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि T2 में क्या तब्दीली आएगी. सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बताइए. What is the heat equation represent in our real world? मैं अभी उस पे आता हूँ. हम उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना. हीट इक्वेशन को ही तो हम डिफाइन करने की कोशिश, उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसी प्रॉब्लम की तरफ तो मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ. आई डू नॉट वांट टू से कि दिस इज द हीट इक्वेशन, जस्ट टेक इट एज सच, बिकॉज इफ आई से इट कि बस यही है और इस पे यकीन कर लो, इस पे ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन जाना चाहिए, तो दैट विल बी अ वेरी नॉन mathematical statement from my side. So I'm trying to define a problem, and from that problem I will try to formulate the heat equation. In fact, I will like you to discover the heat equation. और नजरा, हम मज़े की बात जो है वो ये कि जो मसाइल नादिर को, या मैंने ये पहले और जगह भी वर्कशॉप्स में डिस्कस किया है कि जो प्रॉब्लम हीट इक्वेशन को समझने में या फॉर्मुलेट करने में आते हैं वो चौथी जमात के बच्चे के लिए भी वही होते हैं और एमफिल के बच्चों के लिए भी वही होते हैं. नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि बाय सीनियरिटी in your problems means this. I can give you the answer of why this is. मैंने अभी वो प्रॉब्लम तो बताया ही नहीं तुम्हें. प्रॉब्लम आपने मुझे प्रॉब्लम नहीं बताया, but I've already figured it out. Okay, tell me. Problem ये that why a person that is going through some high class university या कोई ऐसी चीज, and a person that is going to मतलब school, the thing is that they have the same mindset same ही है. The brain works the same for everyone. There is no such thing called as superiority. नहीं, सुपीरियरिटी की तो मैं बात नहीं कर रहा. मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने मैथमेटिक्स को एज अ डिसिप्लिन पढ़ने की कोशिश की है और वो एमफिल भी कर ली है या पीएचडी भी कर ली है, तो अगर हम थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश करें तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं
वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक चौथी जमात के बच्चे के जहन में भी होंगी। तो आखिर सवाल पैदा ये होता है कि ये सारा कुछ पढ़ाने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो क्या मसाइल हैं। ये तो खैर एक बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन मसाइल हैं। अच्छा, तो मैं अब यहाँ से आगे चलता हूँ कि नयरा, आप मेरे साथ हैं। हम प्रॉब्लम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें T0 पर टेम्परेचर प्रोफाइल पता है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि डेल्टा टी के ऊपर, यूनिट टाइम के ऊपर, डेल्टा टी या यूनिट टाइम के बाद ये टेम्परेचर प्रोफाइल T2 के लिए, इस पॉइंट के लिए, सिर्फ एक पॉइंट के लिए टेम्परेचर में कैसे तब्दील हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने ये डिस्कस किया था तो अभय राणा ने हमारी हेल्प की थी। There were basically two obstacles which should be crossed. Sarmad, are you with me? Yes, yes, yes. There are basically two obstacles, pedagogically two obstacles, which should be crossed in order to reach from here to here. The first obstacle is कि जो change in temperature T2 है, इसको मुझे T2 कह देना चाहिए। Change in temperature T2 after a small time is proportional to, ये अभय राणा ने हमें अपने कॉमन सेंस से ये बात बताई थी। उन्होंने ये कहीं से पढ़ के नहीं बताई थी, उन्होंने ये बात अपनी कॉमन सेंस से बताई थी हमें। दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये बात डिस्कवर की थी और बाकी लोगों को भी डिस्कवर करवा दी थी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है T2 के अंदर, इस रॉड के इस पॉइंट के ऊपर, वो T1 और T3 के एवरेज ले लें और उसको T2 में से माइनस कर दें, तो वो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है इन यूनिट टाइम। Sarmad, you will like to comment on that? Yes, yes. That's actually called Newton's law of cooling. So the Newton's law of cooling says that the rate at which bodies cool is proportional to the difference of the temperature with the environment, right? So the average is the average temperature of the environment, and you're taking the difference, and you know, the constant is there. That's Newton's law of cooling. That's very beautiful. So whoever came up with that should be very proud because they've discovered something Newton did. जी जी। अच्छा, तो अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए तो ये तो एक ऑब्स्टेकल थी जो अभय राणा ने हमारी दूर कर दी, और मेरे ख्याल में तुमने सही कहा कि जिसने ये चीज़ डिस्कवर की होगी वो he should be very proud of it, है ना? Yes, definitely. इसमें क्या इंटेलेक्चुअल एफर्ट की ज़रूरत है ये चीज़ डिस्कवर करने के लिए? Ashraf, the mind of genius works in very strange ways. So it's a stroke of genius. It could be a lot of labor. I don't know how Abhay did it or Newton did it. You know, I can just awe at it. हाँ, लेकिन you see, अभय राणा को इस बात का, अभय राणा आप मेरे साथ हैं? Yes sir. आपने तो ये हीट इक्वेशन पहले नहीं पढ़ी थी? नहीं सर, मैंने सुनी। तो आपने ये चीज़ कैसे डिस्कवर कर ली और बाकी लोगों को भी डिस्कवर करवा दी, और जब वो बाकी लोगों ने आपकी बात सुनी तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ट्रिवियल सी बात है, जैसे सरमत ने हमें बताया था कि क्योंकि सर आपने हिंट दे दी थी, आपने कहा था कि मान लो तुम बीच में खड़े हो, एक तरफ तुम ऊपर से कोई खींच रहा है, एक हाथ तुम्हारा ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है और एक हाथ तुम्हारा कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मतलब फिर आपने इतनी हिंट दे दी थी तो मैं समझ गया था हाँ जो उसका नेट रिजल्ट आएगा वही कुछ होगा। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात थी जो आपने की। तो एक मेजर
ऑब्स्टिकल या मेजर क्या कहना चाहिए पेडागोजिकल इशू हीट इक्वेशन को डिस्कवर करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए ये है कि चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर यूनिट टाइम इज एवरेज ऑफ T1 एंड T3 माइनस T2। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल और है जो हमें क्रॉस करना है, और वो ऑब्स्टेकल मेरे ख्याल में, सरमद आर यू विद मी? यस, वो ऑब्स्टेकल इससे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रहा है, इस सेंस में कि जो मेरे ऑडियंस थे, जो मेरे साथ थे, मैं भी ऑडियंस में शामिल था, उनके लिए भी ये मुश्किल था और मेरे लिए भी ये मुश्किल था इस चीज़ को एप्रिशिएट करना। ये वाली चीज़ तो अभी राना ने थोड़ी सी एफर्ट के बाद या थोड़े से हिंट के बाद, मेरे ख्याल में अगर मैं वो हिंट ना भी देता तो वो शायद वो खुद ही वो हिंट निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वो क्या मसला है। ये वो मसला मुझे है, ये सेकंड वाली बात ज़्यादा आसान लगी थी। अच्छा सेकंड वाली बात मतलब मैं आप वीडियो क्या है? मुझे तो पहले ये बताएं, ये सेकंड वाली बात। ठीक है, आपने बात कर दी तो अब पहले तो बताएं है क्या ये सेकंड बात? सर सेकंड बात में ये है कि दो चीजें आपने बताई थी वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी। एक विद रिस्पेक्ट, खैर ये मैं नयरा चूंकि नहीं थी तो मैं इनसे सुनना चाहूंगा कि सेकंड बात क्या थी। हाँ जी बताइए। ये हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया है ना, तो वी कैन सी के बेसिकली जो हर टर्म है, पहली वाली जो T1 और T2 वाली है वो एक डिफरेंस है इमीडिएट पॉइंट्स का, और दूसरी T2 टू T3 जो है वो भी इमीडिएट पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो वो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव या स्लोप होती है, अगर हम ये इसको यूनिट एक्स एक्सिस पे यूनिट एज्यूम कर लें। अच्छा, और T1 उसके बाद आगे देखें तो नहीं एक मिनट, T1 माइनस T2 इन यूनिट टाइम है ना जी, तो वो स्लोप होती है। इन यूनिट डिस्टेंस होगा, सॉरी इन यूनिट डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ना, वो यही टर्म आएगी। माइनस T2 इन यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है? जी जी, तो और वो स्लोप बनेगी, और दूसरी जो है वो भी एक स्लोप बन रही है उससे इमीडिएट दूसरे पॉइंट पे। आहिस्ता, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम या डेल्टा, यूनिट टाइम नहीं यूनिट डिस्टेंस। तो ये दोनों स्लोप डिस्टेंस है, ये दोनों स्लोप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जी, ठीक है? जो फिजिकल डिस्टेंस है रॉड के ऊपर हमारा ना। हाँ, तो जब इनका डिफरेंस हम लेंगे अब तो फिर क्या बनेगा ये बताओ। जी, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो एक्चुअली उसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी स्लोप की स्लोप है। ये जो मसला है यहाँ पे प्रॉब्लम आता है सरमद। मैंने ये प्रॉब्लम मुख्तलिफ सेमिनार्स में और सिम्पोजियम्स में डिस्कस करने की कोशिश की है। जब हम ये कहते हैं कि एक गाड़ी मूव कर रही है, सरमद आर यू विद मी? यस यस। अगर एक गाड़ी मूव कर रही है और हम उसका डिस्प्लेसमेंट ऑडोमीटर पे चेक कर रहे हैं और टाइम घड़ी में नोट करते जा रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल टू डू दैट, राइट? तो हम ये कहते हैं कि हम उसका देखते हैं कि कितना यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज द स्पीड, दैट इज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम स्लोप जो कि स्पीड है, जो स्पीडोमीटर पे नजर आ रही है, हमने ऑडोमीटर से हम स्पीडोमीटर पे आ गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आ गए, जो कि स्पीडोमीटर पे हमें नजर आ रही है। तो वहां पर हम फिर ये कहते हैं कि अगर हम स्पीडोमीटर का डिफरेंस लें, अगर वो जो गाड़ियां बच्चे जब जिनको नई नई गाड़ी मिल जाती है, जब वो रेड बत्ती सबज होती है तो वो एकदम से ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, मतलब चेंज इन स्पीड इन ए यूनिट टाइम,
उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। Right. Great. अच्छा, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसका यूनिट्स थे, मीटर्स थे, टाइम के यूनिट सेकंड्स, और स्पीड के यूनिट्स हमारे मीटर्स पर सेकंड थे, और एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे। Right. Right. अच्छा, अब ये चीज़ जब मुझे याद है कि 9th क्लास में मुझे एक्सेलरेशन के यूनिट्स बताए गए थे, तो मुझे कुछ थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि ये टाइम स्क्वायर कहाँ से आ गया। लेकिन अब मेरे ख्याल में हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ सोचना कि अगर हम स्पीड का डिफरेंस लें यूनिट टाइम के अंदर या एक छोटे से टाइम के अंदर, तो टाइम स्पीड के अंदर भी टाइम आता है, और जब हम स्पीड का डिफरेंस लेते हैं तो उसमें भी टाइम आता है, तो टाइम स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो हम हाँ बोलो Sir, how can this exist? How this the heat equation exists when the in a 1D plane, because frankly it's going to be a lot of problems. ये जो आपने अभी केस दिया ना, I've been thinking deeply about it कि मतलब in a 1D plane up and down सिर्फ up and down होता है, sideways there is no such thing as distance in 1D plane में, and how can a temperature and how can temperature एक एक्सिस तो होता है ना, यानी ये जो रॉड है ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो इसमें टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा तो हो सकता है ना डिस्टेंस के साथ। अच्छा, there cannot be an infinite rod. वेल इनफाइनाइट रॉड का मतलब ये नहीं है कि वाकई मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फाइनाइट रॉड है, इसलिए कि अगर हम फाइनाइट रॉड कर देंगे तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस मुख्तलिफ हो जाएंगी। सो देर आर रीजंस फॉर मी नॉट टू। नयरा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये सेकंड डिफरेंशियल पे जब आप गई यहाँ से, हाँ तो जी। ये आपके लिए ये सेकंड डिफरेंशियल टाइम के हवाले से नहीं है जी, ये स्पेस के हवाले से, ये स्पेस के हवाले से है। तो ये यहाँ से यहाँ जाना मेरे ख्याल में तो काफी लोगों के लिए तकलीफ देह है। आपके लिए तकलीफ देह नहीं था? सर ये हम सारा कुछ जो है वो स्पेस में ही रह रहे हैं ना। वो टाइम वाला तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था एक्सप्रेशन, और पिछली दफा आप उसे इक्वेट कर रहे थे, आज आपने उसको वैसे ही प्रोपोर्शनल में कर दिया है। इधर तो हम हैं ही स्पेस में, और वो टर्म्स रीअरेंज होते ही मुझे तो नजर आ गया था कि हाँ ये सेकंड डेरिवेटिव है। दैट वाज नॉट समथिंग के नौफल, आपका क्या ख्याल है कि आपको मुझे भी अजीब नजर नहीं आ गया? लगा। सर सरमद साहब मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ना जी। सरमद साहब का कोई सर, कमेंट मुझे है? एक चीज मेरे बोलो नौफल, बोलो। सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो है ना आपने ये जो चेंज लिया है ना, चेंज ऑफ एक्स लिया है पहले डेरिवेटिव के केस में, वो आपने फर्ज करें एच से लेके आई तक लिया है और फिर आई से लेके ई तक लिया, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ एक्स है, ठीक है। और जब सेकंड डेरिवेटिव के केस में हमारे पास ये चेंज डबल हो जाता है, मतलब ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव में उसका हाफ चल रहा था और सेकंड में वो पूरा इंटरवल एक बन जाता है, तो वो तो इंटरवल डबल नहीं हो गया? मतलब ये कि आप इससे डिसएग्री करते हैं? हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप नजरा, आप जरा इनसे डिस्कस करें ना कि ये किस चीज पर इनको मसला हो रहा है। मैंने यहाँ डेल्टा एक्स नहीं लिखा, इसके नीचे भी डेल्टा एक्स नहीं लिखा, और फिर इस सारे के नीचे भी डेल्टा एक्स नहीं लिखा। बस यहाँ ये लिख दिया इन यूनिट डिस्टेंस स्क्वायर, ताकि आप लोग
आप लोगों को कुछ थोड़ा सा मेंटल एफर्ट करनी पड़े इसको डिस्कवर करने के लिए। तो नजरा, आप ज़रा इनसे नौफिल से प्लीज़ डिस्कस कर लें ये। हाँ जी, आप नौफिल, आपको मुझे समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हो कि जो आप सेकंड वाले में वो 1 की बजाय 2 हो जाएगा, लेकिन ये असल में अगर एक्सप्रेशन को वैसे सोचें तो वो ये है कि ये पहला वाला जो टर्म है T1 T2 वाली, ये हमारे डेरिवेटिव के ऊपर 1 पॉइंट होगा, और जो दूसरी वाली टर्म है वो डेरिवेटिव वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर दूसरा पॉइंट है। उनमें डिस्टेंस अभी भी 1 नहीं है, वो 2 नहीं है। अगर हम कहें कि वैसे मुझे जो लगता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना वो शायद प्रोपोर्शनैलिटी में कवर हो जाएगा कांस्टेंट। हाँ, वो लेकिन जो अभी आपने बोला ना वो तो मुझे बिल्कुल नहीं, मैं आर्ग्यू ये कर सकता हूँ कि देखें, आप ये कह रहे हो पहले कि इन टर्म्स ऑफ अगर स्पीड में बात करूँ कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो हो गई स्पीड। अब 1 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज होती है वो होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह रहे, यहाँ पे आप कह रहे हो 1 सेकंड में इतना मतलब एक डिस्टेंस, मतलब एक dx में इतना का चेंज हुआ, और फिर साथ ही एक dx में इतना चेंज हुआ, और फिर आप कहते हो 2 टाइम्स ऑफ dx में ये चेंज हुआ। यानी सेकंड डेरिवेटिव पे आप dx जो है ना वो 2 टाइम्स ले लो पहले वाले का। नहीं, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के 2 पॉइंट्स पिक करें तो वो यही बनेंगे ना, ये पहला वाला एक डेल्टा t और दूसरा वाला भी, मतलब 2 पॉइंट्स एक डेल्टा t1 और एक डेल्टा t2 सपोज, तो उनमें डिफरेंस जो है वो फिर अगेन 1 का ही है, वो 2 का नहीं है। अच्छा सरमद, आपका क्या ख्याल है? पहले वाले में बंद Yeah, so essentially we're using this thing, na? So you're taking the function at x plus delta x and subtracting from it f of x minus delta x, and then dividing it by delta x squared. And if you take the limit of that, that's the second derivative. That's what we are doing. Now, why is it equal to the delta t with respect to time? That's what Newton's law is saying, right? Or a constant is not a problem. We can always change the units to take the constant to be 1, right? तो वो तो कोई इतना बड़ा issue नहीं है. So I think that's pretty clear. Sir, why is Newton's law, why is it so important? Oh, why is it so important? Newton's law explains to us how things cool and heat. So if you want to make a... But there's always something that defines the laws. Well, Newton discovered this law, right? And it's extremely useful if you want to design a furnace. And if it is a law is a big word, and matlab, it should be used the right way. If it is a law, then there's things that at the end of the day, define it, because it's a law. It's a law of the universe, the law of the cosmos. Then why can't the laws of motion be defined by something like a black hole? Well, the laws of motion are not defined by a black hole. Laws of motions are defined by differential equations. Okay, laws of motion are applied to studying black holes, right? Similarly, Newton. Why do if you look at a black hole, and if you look at the laws of motion, how do they really because the law, if I search up how the laws of motion, how I can't hear you. Holes? Can you repeat? I couldn't hear you. Okay. I mean, why is there always something that it is going to be defined? There's always something in the universe that is going to be that is not going to follow the rules of motion. And one of them is
is a black hole. A black hole. This. Okay. So you are saying that no matter what law you come up with, you'll find a phenomena that may not follow it. I'm also saying that a law might not be a law, so-called law. Because if the laws of motion are going to be defined, then how can they be laws? If there is always going to be some phenomenon, and that's why, and that's one of the parts of my research, that there is no such thing in the universe called the law. There is no law. There's always going to be that one thing that is going to defy. You know, that's a very big statement that you're saying. One would have to find evidence for that, right? So I'm asking you of evidence, please. No, the burden of evidence would be on you because you're making the statement, not me. Okay. I'm going to prove it to you that the so-called laws of motion or the laws of this great scientist aren't so great. Nadir, you are right, मगर हम under certain limited conditions, Newton's laws still apply. Einstein's theory of relativity, general theory of relativity और special theory of relativity का मतलब ये नहीं है कि न्यूटन के लॉज जो हैं, हम मार्स पर जब अपना हमने रूवर भेजा है, वो भी उसमें आइंस्टाइन की थ्योरी भी इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन न्यूटन के लॉज हमें प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जुपिटर कितने अरसे के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा. तो देयर आर लिमिटेशंस, जैसे सरमन ने कहा कि देयर आर certain heuristics, but then there are certain approximate algorithms or there are certain exact algorithms जो ये बता देते हैं कि इन लिमिट्स में रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं. तो उन लिमिट्स में रहते हुए सर वो फैक्टर के बारे में एक कमेंट करनी है अगर आप. जी बताइए. वो जो अभी किसी ने इसमें कमेंट ये किया कि वो फैक्टर 2 इसमें चाहिए ना, तो मेरे ख्याल में वो फैक्टर 2 इसलिए नहीं चाहिए कि जो T1 माइनस T2 है ना, T1 माइनस T2, जब when you divide that by that delta x, तो ये जो स्लोप है ये ना T1 वाली लोकेशन पे होगा ना T2 वाली लोकेशन पे होगा, ये मिड पॉइंट पे होगा. सो इट विल बी मिडवे बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स. तो आप वो नोट कर लें. इसी तरह T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x का जो स्लोप है वो भी T2 और T3 वाली लोकेशंस के मिड में होगा. वो दो मिड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्टिल डेल्टा x, दैट इज नॉट 2 डेल्टा x. हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें एक्सेलरेशन में नहीं आया था. तो ये तो एक्सेलरेशन नहीं है ना, ये तो स्लोप है. सो वो स्लोप जिन पॉइंट्स के दरमियान है वो दैट इज स्टिल डेल्टा x, देयर इज नो 2 डेल्टा x. अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वहां पर तो ये प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आया था. चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं. और जी तो सर मैंने क्या था, like you said, if there is going to be a certain मतलब thing in these the rules of physics and chemistry जो भी है will apply, then what about the things of the cosmos, the parts of the cosmos that go out of those bonds, then what are they represented by, how are they created? That's a question that Sarmat can answer. Look, when people study fairly complicated things like gamma ray burst or black holes or things like that, then they come up with theories which are applicable under those conditions, right? So, for example, Newton's laws are very good to explain the planetary motion, but the motion of Mercury was not very well explained by Newton's laws. So Einstein came up with general relativity, right? So similarly, you know, at the end of the day, they're just theories, but this is law we're talking about here. Law, the law of motion, the law of things. Because if it is law, then it has
in my eyes, a law is something that is agreed by everyone, everything, and it is not very sacred. Neither everything is not sacred in this world, not even the God Almighty. So why you think laws should be so sacred कि वो violate नहीं हो सकते? हर चीज violate हो सकती है भाई. Sir, in my eyes, कि मैं आपको बता दूं that if it's going to be called a law and everything makes it so true that then it should be up to date with the new things. Okay. Newton. Look, I think Nadir has a problem. Okay, Nadir, let me say this. Okay. Hello. Yeah. जी. I can't hear Nadir. Sarmad, you continue. Okay, so I think Nadir's problem is slightly semantic. This is called a semantic problem, and that is what to call what things. Now, if Nadir is not very happy with the word law, he can change that and call them near laws. Okay, he can do that, and there's nothing wrong with doing that, except for you know, after a while when he goes to university and all that, he could keep calling them near laws and other people will call them laws. They'd just be talking about the same thing. So if it's just a semantic problem, then it could be dealt that way, right? So if you don't want to call Newton's laws, if you want to call them Newton's near laws, that's fine, you know. The God Almighty. I want to discover, because if Newton probably even didn't know about black holes, the things that we know about, that advanced technology back then. So I'm saying, using the advanced technology we have now, I want to try to figure out what would be the actual law, the actual law of the universe that's going to be agreed by everyone, or सारी उस चीज के अंदर आए. Why you have this thinking that there should be a finality in a law? या ये आखिरी word है. In science and mathematics, I don't think we can say this is the last word. Everything is changing. And that's the beauty of knowledge. And that is the courage that we should have. We should accept that it can change. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम नजर आ रही है जो शर्मा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉ के वर्ड के साथ इशू है. मुझे तो थ्योरी के वर्ड के साथ भी इशू नजर आ रहा है, क्योंकि थ्योरी और लॉ में जो अभी तक मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि थ्योरी और लॉ में सिर्फ ये फर्क है कि फॉर लॉ यू डोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन. यू से ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट and I don't have a proof. I cannot prove this from previous principle. If you can prove it, then you wouldn't call it a law. Or when you want to explain that, फिर उसको आप theory कहते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल ट्रूथ है. मतलब वो मुझे थर्मोडायनामिक्स की बुक में पढ़ रहा था, तो वो जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बता रहे थे स्टेटमेंट्स, तो उसमें ये लिखा है कि बिकॉज दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी डिराइव्ड मैथमेटिकली फ्रॉम प्रीवियस प्रिंसिपल्स, it is declared as the second law of thermodynamics, period. तो ये है, ये मतलब फाइनलिटी का आर्गुमेंट. ये कैसे हो सकता है that something that we take for granted every single day, the laws of motion by Newton. No, वो उसको लॉ इसलिए कहते हैं कि how come they're not made by everyone or everything? It is consistent with observations. आप उसको law तभी कहेंगे. जी. All right, let's move forward. हमें थोड़ा सा काम और करते हैं. Let's move forward. मैं जो यहाँ तक लेके जाना चाहता था वहाँ पर now again I have a question
not answers but questions. Here we have time t0. Boundary conditions are different now. At time t0, which is red, now we have a sine function. इसका मतलब ये है कि ये जो रॉड है इस पर ये एक साइन फंक्शन का जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो एक साइन फंक्शन है, और टाइम t0 पे जो रेड कलर की साइन फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर डेल्टा टी और एनी यूनिट टाइम। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, and I will just go to question and open it for discussion. I will not of course answer it. कि ये अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं जो T2 है और T1 और T3 यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये T1 और T3 का जो एवरेज है वो अगर T2 से कम है, जो कि नजर आ रहा है, तो ये T2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ज्यादा नीचे आएगा, यहाँ पर ये कम नीचे आएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो एवरेज है, एवरेज का डिफरेंस है T2 से, वो कम है। ये चीज आप सबको नजर आ रही है नजीरा? यू कैन सी दैट? सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तब्दीली ज़्यादा आएगी टेम्परेचर में टाइम के हिसाब से, इसलिए कि जो डिस्टेंस, अगर हम 2-3 डिस्टेंसेस लें, एक बीच में ले लें और एक इधर ले लें और एक इधर ले लें, तो उनमें जो एवरेज है दो टेम्परेचर्स का, उसका जो डिफरेंस होगा T2 से वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा तब्दीली आ रही होगी, जबकि यहाँ पे तब्दीली कम आ रही होगी। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर एवरेज T3 और T1 की एवरेज T2 के बराबर हो तो T2 में चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये डायगोनल लाइन हो विद 45 डिग्री एंगल विद अ स्लोप ऑफ 1, तो फिर T2 में तब्दीली टाइम के साथ नहीं आएगी, जबकि यहाँ पर तब्दीली टाइम के साथ ज़्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी, इसलिए कि यहाँ पर फिर ये एक 45 डिग्री का एंगल बनाना शुरू कर देता है। ये चीज़ तो ऑब्वियस है। नौफिल, ये तो आपको भी एहसास हो गया होगा, अबे राना आपको भी एहसास हो गया होगा। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो इंट्यूटिवली पूछना चाहता हूँ, मैथमेटिकली हम उसको बाद में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंट्यूटिवली पूछना चाहता हूँ कि डेल्टा टी के बाद, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो है ये तब्दील होके ऐसी हो जाएगी, और उसके बाद ये हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल बाय सिंपल न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद फिर हम एक और डेल्टा टी लेंगे, यूनिट टाइम ले लें या डेल्टा टी ले लें, उसके बाद एक ब्लू कर्व बन जाएगी जो इसके नीचे हो जाएगी, फिर उसके बाद एक और कर्व बन जाएगी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल जो करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपसे डिस्कवर करवाना चाह रहा हूँ, वो ये कि टाइम के हिसाब से ये जो चेंज होगा, क्या ये लीनियर होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये एक्सपोनेंशियल होगा? किस बेसिस पर हम ये कह सकेंगे कि ये टाइम में जो तब्दीली आ रही है, टाइम में जो तब्दीली आ रही है वो उसका फंक्शन जो है वो किस किस्म का है? अच्छा, ये इसको मैं और तरह से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी हीट इक्वेशन है। हीट इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें एक टी का फंक्शन निकालना पड़ेगा जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, जो टाइम पे भी डिपेंड करेगा और एक्स पे भी डिपेंड करेगा। एक्स की डिपेंडेंस तो हमें दी हुई है बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से,
एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि t का जो फंक्शन होगा उसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको ताकि आसानी रहे आप सबके लिए, कि t will be a function of f1 of t, and it will also be a function f2 of x. All right. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं और कलर कर दूं तो परहैप्स ये हमारे लिए आसान हो जाएगा देखना। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं बात, वो मैं ज़्यादा आसानी से फिर शायद एक्सप्लेन कर सकूं। टेक्स्ट का साइज मैं लार्ज कर दूं। ऑल राइट, ये लार्ज नहीं हुआ लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि f1t is a function of time, f2x is a function of x। अब हमें इस तरह के फंक्शंस तलाश करने पड़ेंगे। हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कन्वेंशनल तरीके पे नहीं जा रहे, हम इंट्यूटिव तरीके पे जा रहे हैं। मुख्तार साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमें एक ऐसा फंक्शन टाइम का देखना पड़ेगा और ऐसा फंक्शन x का देखना पड़ेगा कि अगर हम t को पार्शियल डिफरेंशिएट करें सेकंड टाइम्स x के हिसाब से और t को डिफरेंशिएट करें, टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करें टाइम के हिसाब से एक दफा। यू गेट माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू, नयरा, कैन यू सी कि अगर मैं टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करूं टाइम के हिसाब से एक दफा और x के हिसाब से दो दफा, तो वो इक्वल आए या और तो वो प्रोपोर्शनल हो जाए एक दूसरे के, मतलब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बीच में आ जाए। ठीक है, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि f2x तो हमें दिया हुआ है विच इज अ साइन फंक्शन। f1 ऑफ t जो है वो इंट्यूटिवली आपके ख्याल में क्या होगा या उसको क्या होना चाहिए? नौफिल से मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। क्या हमें कोई क्लू है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा क्लू भी नहीं है? ये भी तुम कह सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है जिसकी बेसिस पे हम इसका जवाब दे सकते हो। अगर है तो वो क्या क्लू है? और मैं आप एक मिनट ठहरो जरा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कैलकुलस की ब्यूटी ये है कि वो अगर हम एक बॉल फेंकते हैं, सरमत तुम हमारे साथ हो? यस आई एम हियर। अगर हम एक बॉल फेंकते हैं, उछालते हैं, तो उसका जो डायनेमिक्स हैं ग्रेविटी की वजह से, वो वही हैं जो एक चांद अगर हमारे गिर चक्कर लगा रहा है तो उसके डायनेमिक्स हैं। तो ये जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉज है, ऑफ कोर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, नादिर एतराज़ करेगा फिर कि हमें इन्हें लॉज नहीं कहना चाहिए। तो मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि कोविड-19 इस वक्त फैला हुआ है। कितने जनाजे लाहौर से निकल रहे हैं हर रोज़, या कितने लोग मर रहे हैं, या कितनी आबादी में तब्दीली आ रही है, वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा? क्या लाहौर में ज़्यादा जनाजे निकल रहे होंगे या किसी छोटे शहर में जैसे कि साहिवाल है वहाँ पे ज़्यादा जनाजे निकल रहे होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने कितने टीके लगाए हुए हैं या हमने कितनी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है? तो जो चेंज इन पॉपुलेशन है या जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो कोविड की वजह से हों, मलेरिया की वजह से हों, नेचुरल डेथ्स हों,
वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होती हैं? Sir, I still have this question that how can we represent the heat equation in real life? नहीं, वो तो मैं बाद में करता हूँ उसकी बात, लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब दो ना, कि लाहौर से ज्यादा जनाजे निकल रहे होंगे या साहिवाल से ज्यादा जनाजे निकल रहे होंगे? चेंज इन पॉपुलेशन है लाहौर के people ज़्यादा Lahore's population is way more and not all people can get the vaccine. नहीं, ये बात ना करो, ये बात ना करो। तुमने ये कहा, जो तुमने पहली बात की है वो बहुत अहम है, और शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी अहम बात तुमने कर दी है। तुमने ये कहा है कि चेंज इन पॉपुलेशन, चाहे वो बच्चों की तादाद हो जो पैदा हो रही हो, या वो लोग मर रहे हों, कम हो रहे हों, वो जो चेंज है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होगा। You said that, I don't know whether you said it knowingly or unknowingly. Nofil, did you agree with that? Did you say that, Nadir? Yes, I. Nofil, did you agree with Nadir कि जो चेंज है वो चेंज इन पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनली होगा? मुझे उसका मतलब तो अभी तक समझ नहीं आया, तो इस वजह से मैं, ये बहुत अजीब बात है कि एक जजीरे में मुझे ये एक बहुत अजीब बात है कि मुझे मतलब समझ नहीं आता, उसका जवाब मैं बता भी दूं तो मैं उसे पसंद नहीं करता। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एक जजीरे में 1 करोड़ लोग हैं, ना कोई बाहर से आ सकता है ना कोई बाहर से जा सकता है। उसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हो रही होंगी वो उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होंगी। एक जजीरा है, उसमें आधी पॉपुलेशन है, तो वहां पर जो डेथ्स हो रही होंगी वो उसके आधी के प्रोपोर्शनल होंगी। ये बेसिक एक बुनियादी, सरमद इसको क्या कहेंगे? Rate of change. Yeah, this is a very fundamental observation that the rate of change of population is proportional to the population. It's a basic fact of understanding how populations grow. अच्छा, तो सर मैं ऐसे नहीं सोच रहा इसको, मैं बता देता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जो पहले है, पहले हमारे पास दोनों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, एक की कम और एक की ज़्यादा है, लेकिन शुरू में जब एक बंदे को हुआ है वो जो है ना उस बंदे के प्रोपोर्शनल, मतलब उस वक्त हमारे पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त रेट काफ़ी ज़्यादा होगा डिसीज़ फैलने का, तो जो है ना, और वो जब रेट जाके क्लिप तब होगा जब वो बहुत सारी पॉपुलेशन के पार्ट को मतलब वो हो चुका हुआ होगा, उस वक्त रेट कम होना शुरू होगा। हम तो शुरू में हम मतलब ये नहीं कह सकते कि देखो हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात कर रहे हैं, हम रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये SIR का मॉडल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, वो बाद में हम पढ़ेंगे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कोविड हो या ना हो, मलेरिया हो या ना हो, शेर आके हमला कर रहे हों लोगों पे या ना कर रहे हों, जंगल हो या ना हो, जो चेंज इन पॉपुलेशन है, चाहे बच्चे पैदा हो रहे हों चाहे लोग मर रहे हों, वो प्रोपोर्शनल होते हैं पॉपुलेशन के। सो द चेंज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ। सरमद, इसकी बुनियाद कहाँ से आई है? Ashraf, it's basically exponential growth, right? This is the fundamental observation. It was made by several people, including Darwin, and that's why he said that populations will increase and that will create the struggle for life. नहीं, वो तो तुम्हारी बात ठीक है, तुमने तो उसका जवाब बता दिया कि एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है
कि चेंज जो है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ये एक बड़ी बुनियादी बात है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। Yes, I don't know historically who was the first one to write down this equation. ये probably classical काम है जो, you know, sometimes it's called folklore. Yeah. तो मतलब ये है कि इसके पीछे ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें या ना करें, हम जरासीम खुद से पैदा करके डालें या ना डालें, जो चेंज इन पॉपुलेशन है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो है, इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो पॉपुलेशन के बराबर होती है। तो ये एक बुनियादी जो कानून है, यू मे बी सरप्राइज, डॉक्टर मुख्तार आप मेरे साथ हैं? नो सर, वो जा चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यूसीपी में जब मैं डीन था तो मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ किए थे। मैं उसका डिस्टॉर्टेड नाम लेता हूँ, लोथका वोथका इक्वेशंस। सरमत क्या कहते हैं, ये जो प्रीडेटर प्रे इक्वेशंस होती हैं? सर हाँ, एक मिनट नादिर, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दो। I don't recall them, so you can go ahead. Predator prey equations, they are quite complex. तो अगर हम मैं अक्सर उनको ये कहता था कि प्रीडेटर प्रे जो इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको आप उनकी तैयारी करके आनी है, और उनका एक छोटा सा सबसेट, उनका एक छोटा सा चूहा वो ये होता था कि हम ये छोड़ देते हैं कि कोई जंगल में शेर हैं और वो भेड़ों को खा रहे हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जंगल में भेड़ें हैं जो खुद ही मरती जा रही हैं, कुछ अरसे के बाद मर जाती हैं। तो वो उनका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? अच्छा, मजे की बात यह कि वो प्रेडेटर और प्रे प्रॉब्लम तो उन्होंने पढ़ लिया होता था, वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर देते थे। लेकिन जब मैं इस प्रॉब्लम पे आता था, जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल में आसान प्रॉब्लम है, कि अब शेर बकरियों को नहीं खा रहे, अब बकरियां अगर मर रही हैं तो वो खुद ही मर रही हैं, या अगर शेर पैदा हो रहे हैं तो वो खुद ही पैदा हो रहे हैं, बकरियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो ये बुनियादी जो ख्याल था, ये उनको अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल था। प्रीडेटर प्रे प्रॉब्लम उन्होंने पढ़ा हुआ था और उसको वो एक्सप्लेन कर देते थे, जो बहुत इसकी निस्बत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। They weren't able to deal with a special case, right? हाँ, मतलब स्पेशल केस, इसको स्पेशल केस कहना चाहिए या इसको क्या कहना चाहिए, कि ये तो बिल्कुल एक बुनियादी चीज है ना। या तो इससे वो अनकंफर्टेबल होते थे, लेकिन अच्छा, वो प्रेडेटर प्रे प्रॉब्लम से वो यहां पर नहीं पहुंचते थे। अब ये चीज मेरे लिए हैरानी का बायस, नयरा तुम्हारे लिए क्या ये हैरानी का बायस है या नहीं? सर हाँ सर, असल में शायद ना वो जिन लाइंस पे सोच रहे हैं उससे बाहर निकल के नहीं सोचते होंगे ना, फौरी तौर पे, कि ये एक ही चीज है, मतलब वो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आर यू कंफर्टेबल विद दैट, कि अगर कोई बड़ा शहर है तो वहां से जनाजे ज्यादा निकलेंगे? जी मतलब अगर शायद वो प्रेडेटर वाले मोड में हो तो फौरी तौर पे ना याद आए कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है। नहीं, मैं प्रेडेटर अंडरस्टैंड। हाँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक एज अ बेसिक फैक्ट ऑब्वियसली वी नो कि वहां ज्यादा जनाजे निकलेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ा शहर है तो वहां ज्यादा जनाजे निकलेंगे। यस, अगर कोई बड़ा शहर है तो वहां पे ऑब्वियसली डेथ्स ज्यादा हो रही होंगी।
अगर उसकी कंपैरिजन में कोई बहुत छोटी जगह है। सर हाँ जी। सर अगर देखा जाए हाँ? अगर मेरा कोई बड़ा शहर है तो उसमें जैसे अगर कोई बीमारी हो जाए कम्युनिटी वाइड स्प्रेड भी ज्यादा हो जाएगा तो चक्कर में मौतें भी उधर ज्यादा ही होंगी एज कम्पेयर टू छोटा शहर। नहीं, वो तो फिर आप वहां पर भी वही बीमारी ले लेना। हम तो सर हाँ तो अगर छोटा शहर है तो वहां पर लोग अपने अपने घर पे रहेंगे मतलब वहाँ कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है तो इतनी ज्यादा मतलब बीमारी फैलेगी भी नहीं इतनी तेज रेट पे। अच्छा, पर जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा फैलेगी बीमारी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, बच्चों की पैदाइश, वो भी क्या पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करती है या प्रोपोर्शनल है? हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं सर आपसे ये सवाल पूछूंगा, एक मिनट नादिर, कि अब ये बताइए कि ये चेंज इन टेम्परेचर जो है इन टाइम, वो उसका फंक्शन क्या होगा? अब क्या टेम्परेचर जो है उसका चेंज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? हाँ सर। अगर कर रहा है तो फिर तो वही बात हो गई जो पॉपुलेशन वाली बात थी। सर हाँ बोलो। मैंने ये बोला था, ये मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन है फिर मैं सोने जा रहा हूँ कि हाउ डज ऑल ऑफ दिस, ये सारा ये पूरी पॉपुलेशन का सिचुएशन, हाउ डज दिस ऑल टाई इनटू मैथ्स या फिर कैलकुलेशन या फिर द हीट इक्वेशन? Sarmad, perhaps you would like to answer that. Okay, yeah, Ashraf, I wanted to say one more thing. कि ये जो आपने बात की ना कि the number of people who will die will be proportional to the population. This phenomena is spectacular. So, for example, if you have a radioactive element, the number of atoms that decay also follow this rule. And with that rule, you can do something called carbon dating, which means you can look at a pottery from Mohenjo-daro, and by just looking at the carbon isotopes, you can tell how old that is. So, you know, this phenomena is universal. The second question that you said is that the SIR model is also, it's a set of differential equations. It's not one differential equation. And one of them, for example, says that the number of people who will recover will be proportional to the number of people who are infected. And that just makes sense, you know, if say 98% of the people recover from COVID, then, you know, the number of people will be proportional to how many patients do you have. And there are, you know, a couple of other equations that go in there. So, you know, these basic things are at the heart of So I can go, मतलब मामा बुला रही हैं. Okay, all right. So, but the thing is that these models get more and more complicated as you add in more and more details to them, right? And so one has to learn the basics, and then, you know, so that's how science works. You start with a basic model, and then you keep refining it till you get something which is very close to what is happening in real life. Okay. All Okay. right. Thank you. So I think we now we have spent a lot of time. Sarmad, would you like to comment what we are doing, how we are doing? Any suggestions, any comments? Of course, we are immature people trying Including me. Okay. So, yes, but we would like your comments and suggestions, please. Ashraf, this is wonderful what you're doing, and you know I'm so happy to see you do this, and you know you have a very varied crowd, a very young person, and I hope some of them are as old as me. So, you know, you have a good age group, good mix of people. But, you know, I would like to see more people, you know, rather than just 10, I would like to see 30, 35 people.
So maybe we should advertise this better. So I will try to do that on my own, and the others should also get more people. That's my comment. It's I very think you are absolutely right. We tried everything in our capacity, including reducing the fees to zero. लेकिन जो अजीब बात है वो ये कि those who paid, they stayed with us much longer. Yes, yes. So I'm teaching an online course, and the same thing happened. You know, people who asked me to waive the fees, when I waived it, yet they didn't show up. You know, and that was very distressing. So, so you know. I can feel your dilemma कि अगर तुम फीस माफ ना करो तो भी तुम्हें परेशानी होगी, हाँ, और अगर तुम फीस माफ कर देते हो और वो छोड़ के चले जाते हैं तो तुम्हें और ज्यादा परेशानी होगी. हाँ हाँ. तो उसमें अब मैंने ये सोचा है कि what you should do is people who say they can't pay the fees, ask them to pay 50% of the fees and refund it at the end of the course. वो भी हमने करने की कोशिश की है. वो भी नहीं चलता. अच्छा. वो भी हमने करने की कोशिश की कि हमने कहा कि हम 50% वापस कर देंगे या 70% वापस कर देंगे, लेकिन perhaps we have to be more innovative. मुख्तार साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे प्लीज? Sir, maybe you can advertise somewhere other than Facebook. सर मुख्तार साहब चले गए हैं. मुख्तार साहब चले गए. अच्छा, then I will like Samar to say the last words. Thank you, all of you. Thank you, Ashraf Saab. It was wonderful. Okay, just you know, stick with mathematics. It's a wonderful world. It's a beautiful world, and you have a wonderful opportunity learning it from a great teacher. So, thank you very much. Bye bye. You said a very insulting thing, by the way. You called Dr. Ashraf, Dr. Ashraf, a teacher. That's a very insulting thing. It is a very. That's a very insulting thing. Okay, thank you very much, Ji. Okay, bye bye. Bye. Hafiz. Hafiz, Ji.